In the name of Almighty Allah, the Beneficent, the Ever Merciful, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you people will be fine. Today I have come up with a critical analysis of the same story, जिसके summary और major factors हम पिछली वीडियो में discuss कर चुके हैं. Before we dive into the critical analysis of the story, मैं आप सबको इस story के बारे में एक brief सी information दे देना चाहता हूँ. As long as the information regarding the story is concerned, I have divided this story in two parts. The very first part, it talks about the literary devices or techniques that the writer has used while writing the story, and the second part, it talks about the critical analysis of the story, which is also the most important part because यही वो part है which is frequently asked in your examination. Talking about the first part, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी लिटरेरी टेक्निक और डिवाइसेस हैं जो राइटर ने यूज़ की हैं while she has written this story. While I was going through this story, जब मैं ये story पढ़ रहा था, I felt कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेरी टेक्निक जो बहुत ज़्यादा इस स्टोरी को लिखते हुए राइटर ने यूज़ की हुई है, that is the of imagery. This particular technique has been extensively used by the writer, और आप देखेंगे from the very start of the story till the end of the story, इस टेक्निक को इस तरीके से यूज़ किया गया है that you feel that you're standing at that particular point जहाँ भी ये सारा इंसिडेंट हो रहा है and you're watching that incident from your own eyes. आप स्टोरी के स्टार्ट से बिल्कुल अगर शुरू करें तो आपको पता लगता है that each scene has been described in a very beautiful way. The whole story, it depicts the scene of a very busy intersection of one of the cities of our state, which is Karachi. कराची की एक बहुत बिजी रोड का पूरा सीन एक्सप्लेन किया है राइटर ने इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी जहाँ भी इंसिडेंट हो रहा है. द नेम ऑफ द इंटरसेक्शन इज़ सबमरीन चौक जो विच इज़ ऑब्वियसली लोकेटेड इन कराची एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर. और इफ़ वी टॉक मोर स्पेसिफिकली अबाउट दिस पर्टिकुलर सीन, शी इज़ ड्रॉन द मॉर्निंग सीन ऑफ अ बिजी रोड ऑफ कराची. अब इस सीन को उन्होंने किस तरह से डिपिक्ट किया है, while we read the story हमें पता चलता है, as I have told you, the technique of imagery has been used. You people shall read the story yourself. आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि वो टेक्निक किस तरह से यूज़ हुई है. I need not to tell you people at this stage कि the technique of what is the technique of imagery. We are very much well aware of that. और while you shall read each and every line, you shall come to know कि किस तरह से this technique has been used by the writer. ठीक है, और उन्होंने इस टेक्निक ऑफ इमेजरी को यूज़ करते हुए इस सारे इंसिडेंट को इस तरह से डिपिक्ट किया है स्टोरी में दैट वी फील एज आई टोल्ड यू दैट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस. एंड इन दिस वे वी पीपल व्हाइल वी रीड दिस स्टोरी वी आर एबल टू कनेक्ट टू दिस इंसिडेंट इन अ वेरी प्रॉपर वे. अपार्ट फ्रॉम using the technique of imagery, at some points the writer has also used some metaphors as well. While we talk about literary devices, it is also important to consider this thing as well, that yes, the writer has used metaphors in this story. All right. This was all about the literary devices and techniques used to write the story. Now let's move towards the second part of the story, which is the critical analysis of the story. It is also the most important part. Now before I explain the critical analysis in front of you people, let me tell you one thing. मैं आपके सामने इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल क्रिटिकल एनालिसिस जो थोड़ा बहुत स्टोरी को मिलता है उसको डिस्कस नहीं करने वाला. अगर वही डिस्कस करना होता तो you people would have accessed that particular thing on the internet and there would have been no use of your people coming to me on this platform to listen about the critical analysis and all these things from me. As long as a common perception is concerned about the critical analysis of the story, और इसी के बारे में somehow we find material on the internet as well, एक common perception ये है that this story, it talks about the class difference in our society and it highlights that particular class difference in our society which is very prevalent. और इस स्टोरी के ज़रिए जो राइटर है वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है. देयर इज़ नो डाउट दैट येस द राइटर इज़ ट्राइंग टू हाईलाइट दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम दिस स्टोरी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 और पॉइंट्स हैं. स्टार्टिंग विद द कन्वेंशनल पॉइंट which talks about the class difference in our society. Yes, the story highlights this particular thing.
और जो राइटर हैं वो स्टोरी से ये मैसेज देना चाह रही हैं कि हमारी सोसाइटी में देयर इज़ सर्टन क्लास डिफरेंस, जो कि हम सबको पता है दैट यस इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी, कि हमने सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ पावर डिवाइड कर दिया है डिफरेंट क्लासेस में. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी मूव टूवर्ड्स द कंटेंट ऑफ द स्टोरी, तो जो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है दैट इज़ द डोंकी, हम देखते हैं व्हेन दैट पर्टिकुलर डोंकी इट गेट्स ट्रैप्ड इन द वेरी सेंटर ऑफ द रोड, तो जब वो वहाँ पे फंस जाता है एंड द पीपल दे गेट जैम्ड और द ट्रैफिक गेट्स जैम्ड, तो उस डोंकी को वहाँ से हटाने के लिए तब तक कोई नहीं आता, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तब तक आगे कोई नहीं आता जब तक एक मिनिस्टर वो इस चीज़ को बॉदर करता है. और जब वो वहाँ से गुजर रहा होता है, ठीक है, और उसको प्रॉब्लम होती है, उसके बाद ही, क्योंकि बिकॉज दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी ही हैज़ बीन डिपिक्टेड एज अ वेरी वाइट कॉलर पर्सन who needs to reach the parliament in time, और उसका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जॉब ज़्यादा प्रेस्टिजियस है बिकॉज ही सिटिंग ऑन अ 4-wheeler जीप एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी, उसका स्टेटस हायर है. जब उसको कोई प्रॉब्लम इस तरह की आती है तो उसके बाद ही द फोर्सेस दे गेट इन्वॉल्व और वो उस पर्टिकुलर एनिमल को वहाँ से दे ट्राई टू गेट दैट पर्टिकुलर एनिमल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट अवे. तो ये चीज़ हमें बताती है that the problems of the higher class, that the problems of the elite class, they are considered as problems, and as long as the lower class is concerned, no matter through what they are going, हम उसको कंसिडर नहीं करते एज अ प्रॉब्लम और उसको सॉल्व भी उस वक्त तक नहीं करते जब तक वो चीज़ किसी बड़े या एलीट क्लास या किसी बड़े जो आदमी है या पर्सन है उसको बॉदर नहीं करती. ऑलराइट, तो ये तो बात होगी क्लास डिफरेंस की, कि हमारी सोसाइटी में क्लास डिफरेंस प्रेवलेंट है, किस तरह से एक अमीर या फिर एक स्ट्रॉन्ग तबका जो है इट इज़ सप्रेसिंग अ पुअर पर्सन, और वो सप्रेस कर रहा है वीकर सेक्ट ऑफ सोसाइटी को. अब इसी अम्ब्रेला के अंडर एक और पॉइंट भी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. अगर आप बहुत माइन्यूटली इस स्टोरी को देखें, बहुत क्रिटिकली स्टोरी को एनालाइज करें ना, तो आपको पता चलता है ये स्टोरी 3 क्लासेस को हाईलाइट करती है, और उन तीनों क्लासेस को हाईलाइट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर डिफरेंट करेक्टर्स. सबसे पहला जो करेक्टर है जो एलीट क्लास को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो है हमारा मिनिस्टर. ठीक है, वी हैव अ मिनिस्टर एज अ करेक्टर इन द स्टोरी एंड दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग द एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी. दूसरे नंबर पे आ जाता है मिडिल क्लास. मिडिल क्लास को जो रिप्रेजेंट करने वाले करेक्टर है यहाँ पे, वो दे मे बी द पुलिसमैन, दे मे बी द ड्राइवर ऑफ द मिनिस्टर, और जो लोग हैं द स्पेक्टेटर्स, जो आसपास के लोग हैं जो इस सारे मंजर को देख रहे हैं, these all people, these all characters more specifically, they are representing the middle class of a society. Alright? और तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है लोअर क्लास. लोअर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कौन सा करेक्टर है? यस, यू पीपल आर राइट. यहाँ पे लोअर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास है दैट पर्सन हु ओन्स द डोंकी. ठीक है, वो जो डोंकी का ऑनर है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द लोअर क्लास. अब ये तो क्लास डिफरेंस ये हमारे डिफरेंट करेक्टर से ये स्टोरी डिपेक्ट करती है. अब अगर आप देखें तो ये स्टोरी एक और चीज़ डिपेक्ट करती है जो एक कन्वेंशनल हमारी प्रैक्टिस है, कि जो एलीट क्लास यानी कि जो मिनिस्टर था वो किसके ऊपर जुल्म कर रहा था, वो किसके ऊपर अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा था, अनड्यू पावर को एक्सरसाइज कर रहा था. वो किसके ऊपर कर रहा था? वो कर रहा था एक्सरसाइज ऑनर ऑफ द डोंकी पे. ठीक है, वो किस तरह से, जब वो डोंकी वहाँ पे फंस जाता है, ठीक है, द मिनिस्टर इट स्टेप्स आउट ऑफ द कार, मार्चेस टुवर्ड्स द ऑनर ऑफ द डोंकी, और उसको वहाँ पे जाके ऑर्डर करता है कि इस डोंकी को विद इन 4 और 5 मिनट्स यहाँ से हटाओ, वरना आई शैल शूट द डोंकी. ठीक है, वो उसको वहाँ पे ही वर्डिक्ट सुनाता है. एक ब्रूटैलिटी का एक रिफ्लेक्शन वहाँ पे हमें मिलता है, क्योंकि वो जो ऑनर होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ वही डोंकी होता है, लेकिन स्टिल द मिनिस्टर डिसाइड्स टू किल दैट पर्टिकुलर एनिमल, जो उसकी ब्रेड एंड बटर का सोर्स भी होता है. ठीक है, और हमें पता चलता है कि किस तरह से बार्बरिज्म एक्सरसाइज किया जा रहा है फ्रॉम एलीट क्लास ऑन अ पर्सन ऑफ अ लोअर क्लास सेक्ट. ठीक है, हमें ये पता चलता है यहाँ पे. ठीक है, अब ये प्रैक्टिस तो एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस है जो हमें पता है दिस इज क्लास डिफरेंस. ठीक है, कि एलीट क्लास एक्सरसाइज करती है अपनी पावर किसके ऊपर? लोअर क्लास के ऊपर. लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा जो लोअर क्लास का करेक्टर है, यानी कि जो कि ऑनर ऑफ डोंकी है, वो क्या कर रहा होता है? वो भी सेम चीज ही कर रहा होता है. हालांकि
वो तो एक लोअर क्लास से बिलोंग करता है, उसको इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किस तरह से जब पावर एक्सरसाइज होती है आपके ऊपर अनड्यू तरीके से, तो आपको किस तरह से तकलीफ होती है, आप किस तरह से स्ट्रेस होते हैं, क्रश होते हैं इस चीज़ के अंदर, उसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उसके हाथ में जितनी ये चीज़ें करने की कैपेसिटी होती है वो भी वही कर रहा होता है। वो किस तरह से, अगर आप स्टोरी के टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि राइटर ने लिखा हुआ है कि जब उसका डोंकी, जिसका वो सरप्रस्त होता है, जिसके ऊपर वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे यही रिलेशन बन रहा है ना। अगर आप देखें, डोंकी है, डोंकी के ऊपर कौन है, उसका ऑनर है, ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, किस चीज़ का, सबऑर्डिनेट का, ठीक है, और उसका सबऑर्डिनेट है डोंकी, और उसका ऑनर कौन है, दैट पर्सन। इन दोनों का रिलेशन भी आपस में तकरीबन सेम ही है, जो कि मिनिस्टर और ऑनर ऑफ द डोंकी का रिलेशन है। जब वो उसको वहाँ से हटा रहा होता है, अपने डोंकी को उस जगह से हटा रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो उसको कर्स करता है, वो उसको मारता है, वो उसको अपनी केन के साथ हिट करता है, ठीक है, वो उसको कोई प्यार से या फिर बहुत मोहब्बत से वहाँ से नहीं हटा रहा होता, हालांकि वो जानता है दैट दिस डोंकी इज द ओनली सोर्स ऑफ हिज ब्रेड एंड बटर। इसके बावजूद वो उसके ऊपर पावर एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो उसको कर्स कर रहा होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि एज अ होल हमारी नेशन के अंदर इस तरह का नोशन पाया जाता है कि हमें जहाँ पे मौका मिलता है अपने से नीचे वाले को दबाने का, हम उसको दबाते हैं, नो मैटर कि हम खुद किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एलीट क्लास ही लोअर क्लास को दबा रही है, लोअर क्लास अपने से लोअर क्लास को दबा रही है, मिडिल क्लास अपने से लोअर क्लास को दबा रही है, और ये सारा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ये चीज़ चल रही है, ठीक है। और ये चीज़ इस स्टोरी में हाईलाइट की गई है, इफ़ वी ऑब्जर्व इट विद अ वेरी क्रिटिकल आई। ऑलराइट, अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, तीसरे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। अब जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उस पॉइंट के अराउंड ये सारी स्टोरी रिवॉल्व करती है, ठीक है। इस स्टोरी में पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमारा क्या है, वी नो दैट एक डंकी है, इट हैज़ बीन ट्रैप्ड इन द मिडल ऑफ द रोड, और उस डंकी के वहाँ पे ट्रैप हो जाने की वजह से नो ट्रैफिक इज मूविंग अहेड, ठीक है, कोई वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो आगे नहीं जा पा रही, ठीक है, द ट्रैफिक इज जैम्ड, एवरीवन इज पैक्ड अप ओवर देयर, ठीक है, और वहाँ से वो हिल नहीं पा रहा, ठीक है। यही स्टोरी है, यही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इस स्टोरी में, इफ वी रीड इट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये इटसेल्फ भी एक बहुत बड़ा मैसेज हमें दे रहा है। वो क्या मैसेज है, आइए हम उसको देखते हैं। अब 5 मिनट के लिए सोचें, ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट यू पीपल टू पे अटेंशन टू दिस थिंग। अब 5 मिनट्स के लिए सोचें कि कराची की ये जो रोड है, ठीक है, सबमरीन चौक, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, एक नॉर्मल रोड भी जो होती है, द विड्थ ऑफ दैट रोड ऑफ अ नॉर्मल रोड, द विड्थ ऑफ अ वेरी नॉर्मल रोड, कोई बहुत खुली रोड अगर ना भी हो, ठीक है, और कराची, एज लॉन्ग एज आई नो ऑफ कराची, द रोड्स आर क्वाइट वाइडर, ठीक है, काफ़ी वाइड है वहाँ पे रोड्स, ठीक है, इतनी कोई तंग रोड्स नहीं है, ठीक है। और इफ़ वी टॉक अबाउट सबमरीन चौक, एक मशहूर, इट इज़ अ वेरी री नोन फेमस चौक, ठीक है, बहुत फेमस इंटरसेक्शन है, तो इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 20 to 25 फीट इन विड्थ, ठीक है, इतना वाइड ये चौक होना चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है। फिर भी हम एक सपोजिशन यहाँ पे ले लेते हैं, ये रोड जो है वो 20 से 25 फीट या 30 फीट इन विड्थ है, ठीक है। एक डोंकी और उसके साथ उसका कार्ट, इफ इट इज स्टक्ड इन द मिडल ऑफ दिस रोड, ठीक है, एक 30 फीट की रोड के दरमियान में अगर एक डोंकी अपने कार्ट के साथ फंस भी जाता है, तो वो कितनी जगह ले पाएगा, वो कितनी जगह ले पाएगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो जगह ले लेगा 5 फीट, ठीक है, या शायद इससे भी कम, ठीक है। अब 5 फीट जगह को घेर के बैठा हुआ है आपका ये ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। तो क्या उस 5 फीट की जगह की वजह से क्या बाकी सारी की सारी रोड ब्लॉक हो गई है? नहीं, बाकी सारी रोड की जगह और उसका पैसेज वे इट इज़ ओपन टू मूव। लेकिन हमारे लोग इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, हमारी सोसाइटी इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं पा रही यहाँ पे, कि अगर प्रॉब्लम अराइज हो भी गई है, लेट्स फाइंड द सोल्यूशन। यहाँ पे मेन सोल्यूशन ये नहीं है कि डोंकी वहाँ पे फंस गया है, ठीक है, और हमने डोंकी को निकालना है, डोंकी वहाँ पे फंस भी गया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक मूव नहीं कर रही, और ट्रैफिक मूव करने के लिए वहाँ से डोंकी का हटना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। इसी मेन पॉइंट के अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। लेकिन ये पॉइंट इटसेल्फ आपको ये मैसेज देता है कि वहाँ से अगर डोंकी ना भी हटे तब भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि डोंकी वहाँ पे फंस गया है, प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक नहीं चल रही, प्रॉब्लम ये है कि लोग फंस रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी जगहों पे पहुंच नहीं पा रहे। तो बाकी जितनी रोड है,
ठीक है, क्या वो भी ब्लॉक हो गई है? वो ब्लॉक नहीं हुई, और बाकी जितना पैसेज वे है इट इज स्टिल देयर टू मूव। अगर हम उस 5 फीट के प्रॉब्लम को छोड़ भी दें तो हम बाकी सारी रोड को यूज कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आप 5 मिनट के लिए सोचिए, वो डॉन्की वहाँ का वहाँ ही रहता है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, और उसको वहाँ से कोई नहीं हटाता, वो नहीं हट रहा, उसको उधर ही रह देते हैं। क्या बाकी ट्रैफिक उसके आस पास से मूव नहीं कर सकती? वो कर सकती है मूव। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द प्रॉब्लम्स टू द एक्चुअल सॉल्यूशंस। लेकिन हम वहाँ पे स्टक हैं एक गलत प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे, एक डॉन्की को हम वहाँ से हटाने में सारे लगे हुए हैं। तो ये हमें एज अ होल, एज अ सोसाइटी, हमारी एक रिफ्लेक्शन हमें दिखाता है कि किस तरह से हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं ढूंढते, बट वी गो फॉर द सोल्यूशंस ऑफ रॉन्ग प्रॉब्लम्स, जिसका कोई लेना देना ही नहीं होता। तो दिस इज द थर्ड वेरी क्रिटिकल पॉइंट दिस स्टोरी इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू इट्स टेक्स्ट। ऑलराइट, now let's move towards the fourth very critical point the story is reflecting, और ये somehow थोड़ा बहुत linked है तीसरे point के साथ, ठीक है। चौथा point जो critical analysis का मैंने यहाँ पे निकाला है इस story में से, वो ये है that we are a nation of spectators। हम spectators की nation है, ठीक है, हम तमाशबीन हैं। we like to see such things, ठीक है। अब आप अगर 5 मिनट के लिए सोचिए कि वहाँ पे एक एनिमल स्टक हो गया है इन द सेंटर ऑफ द रोड, ठीक है, जिसको मैंने जैसे आपको बताया कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, हम साइड से निकलने की बजाय, हम रोड की बाकी हिस्से को एक्सप्लॉइट करने की बजाय हम उसको हटाने में लगे हुए हैं। अब 5 मिनट्स के लिए ये सोचिए, आप अगर स्टोरी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे बीना शाह लिखती हैं कि अब जो जितने भी ड्राइवर्स हैं, ठीक है, जो कि अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, जितने भी मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो मोटरसाइकिल्स पे हैं और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, ठीक है, मतलब ऑल द स्पेक्टेटर्स अराउंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एट वन पॉइंट उन्होंने गिव अप कर दिया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उन्होंने अपने इंजन जो हैं उनको ऑफ कर दिया है, इग्निशन ऑफ कर दिया है, और अब तो क्या कर रहे हैं, नाउ दे आर एंजॉयिंग द सीन, वो उस सीन को एंजॉय कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे इस चीज़ को भूलना नहीं है कि यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है वो सुबह सुबह के टाइम के ऊपर अपनी अपनी वर्क प्लेस पे जा रही है। कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई अपनी वर्क प्लेस पे जा रहा है, कोई बैंक जा रहा है, सम ऑफ देम आर बैंक मैनेजर्स, किसी को बैंक जाके ऑपरेट करना है, ठीक है, कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं, ठीक है, जिनकी सर्टेन डेस्टिनेशंस हैं। यानी कि ये सुबह का टाइम है, सुबह का इंपॉर्टेंट तरीन वक्त है जब एक नेशन इट गेट्स आउट ऑफ इट्स बेड, ठीक है, और उसके बाद वो अपने अपने कामों की तरफ जाती है। इतने इंपॉर्टेंट और इतने क्रूशल टाइम के वक्त पे वो एक ऐसे सीन को देखने में मसरूफ हो चुके हैं, ठीक है, जिसकी कोई इतनी वर्थ ही नहीं है, ठीक है, और वो अपनी उस इंपॉर्टेंट टाइम को वहाँ पे सिर्फ एक सीन को देखते हुए, ठीक है, एक स्पेक्टेटर बनकर एक सीन को एंजॉय करने में वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट कि हम एक नेशन है स्पेक्टेटर्स की। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, अक्सर आप लोगों ने कॉमिक वीडियोस भी देखी होंगी। वी पीपल वेरी रेडिली यूज टुडे टिकटॉक एंड ऑल इंस्टाग्राम्स एंड ऑल दीज सोशल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जहाँ पे हम इस तरह की कॉमिक वीडियोस देखते हैं जहाँ पे एक बंदा जो है, ठीक है, इट गोज टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, और वहाँ पे वो कोई चीज़ ऑब्जर्व करना शुरू हो जाता है, मोर स्पेसिफिकली मोर यूजुअली इट इज़ ऑन अ ब्रिज, ठीक है, और वो उस ब्रिज से नीचे देखता है, ठीक है, और उसके बाद क्राउड्स दे जॉइन दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, और वहाँ पे हो कुछ भी नहीं रहा होता, ठीक है, लेकिन वहाँ पे स्पेक्टेटर्स का एक बहुत बड़ा हजूम होता है, ठीक है, और ये वी हैव दिस थिंग इन आवर नेचर, हमारे नेचर में ये चीज़ है। एज अ नेशन वी आर नेशन ऑफ स्पेक्टेटर्स, हम स्पेक्टेटर्स की नेशन है, और हम बिल्कुल फजूल चीज़ों को देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की तरफ जाए। ऑलराइट, द फिफ्थ वेरी क्रिटिकल पॉइंट व्हिच नीड्स टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर इज दैट अनफॉर्चुनेटली हमारी एक और फितरत है एज अ नेशन, दैट वी रिलाई एंड वेट फॉर अदर्स टू डिसाइड फॉर अस। एज अ नेशन हमारे अंदर एक और खसलत है, हमारे अंदर एक और हमारी फितरत है एज अ नेशन कि हम इंतज़ार करते हैं कि कोई हमारे लिए कोई चीज़ डिसाइड कर दे और हम उनके ऊपर रिलाई करते हैं। नाउ वंस अगेन इफ़ वी इंडल्ज आवरसेल्व्स इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी विद अ वेरी क्रिटिकल आई, तो हमें पता चलेगा कि इस स्टोरी का करेक्टर जो कि एक मिनिस्टर है, ठीक है, अपेरेंटली इट इज़ अ वेरी पावरफुल करेक्टर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। पूरे के पूरे स्पेक्टेटर्स, ठीक है, उस डोंकी का जो ऑनर है वो, ठीक है, और मतलब एवरीवन अराउंड वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, उस मिनिस्टर के ऊपर, कि वो अब क्या करता है इस सिचुएशन में, बिकॉज ही इज़ अ पावरफुल पर्सन। अब वो गलत करे या सही करे वो बात की स्टोरी है, वो बात का की डिस्कशन है, लेकिन एट दैट पॉइंट एवरीवन, अगर आप स्टोरी पढ़ें तो आपको स्टोरी के स्टेटमेंट से, स्टोरी के वर्ड्स से पता चलता है दैट एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि अब वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या चीज़ डिसाइड करने वाला है, गलत है या सही है, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता।
हालांकि वहाँ पे वो मिनिस्टर एक गलत डिसीजन कर रहा है, वो एनिमल ब्रूटैलिटी को वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, और उसने ये डिसाइड किया है कि अगर कुछ अगले मिनटों तक यहाँ से ये पर्टिकुलर एनिमल नहीं हटता तो इसको मार दिया जाएगा। नाउ एवरीवन इज सेइंग दिस थिंग, हर कोई वहाँ पे खड़ा हुआ शख्स, ठीक है, हर वहाँ पे खड़ा हुआ स्पेक्टेटर इस चीज़ को जानता है कि ये एक गलत डिसीजन है, वहाँ पे इस एनिमल को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार्बरिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट एनिमल इज़ द ओनली सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसका वो डोंकी है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी आगे नहीं आ रहा, ठीक है, नोबडी इज स्टेपिंग अहेड, और इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, ठीक है, और सब वेट कर रहे हैं कि ये इस तरह का जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, और उसके बाद हम इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो लेम एक्सक्यूजेस दें, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हम जो है ना वो लान तान करना शुरू कर दें, इस चीज़ के ऊपर हम डिफरेंट अपने व्यूज़ पास करना शुरू कर दें कि बहुत गलत हो गया, ठीक है, और बहुत इनजस्टिस हो गया। लेकिन वहाँ पे एक मिनिस्टर और कुछ पुलिस मैन ही है ना, इतने ज़्यादा स्पेक्टेटर्स हैं, इफ दे वांटेड दे कुड हैव स्टॉप्ड दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर, लेकिन नोबडी इज स्टेपिंग अहेड to stop this barbarism. Instead, they are watching it, they are enjoying it. We as a nation, we are such people. हम इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है, अपनी नेशन के अंदर, कि हम एक बार्बरिज्म को देखते रहते हैं। अगर कोई शख्स हमारे लिए कोई बारबैरिक डिसीजन भी कर देता है, हम वेट करते हैं, क्योंकि सिर्फ उसके पास पावर है, इस वजह से हम वेट करते हैं कि यस, लेट दैट पर्टिकुलर पर्सन डिसाइड फॉर अस, जो वो करेगा वो ठीक होगा, गलत है या सही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। Okay, now let's discuss the last point of the story, which is also very important and needs to be discussed. इस स्टोरी की जो राइटर हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर मास्टरपीस, वो हमें एक और मैसेज देना चाहती हैं दैट एज अ नेशन वी आर वेरी इनडिफरेंट। हम बहुत इनडिफरेंट किस्म के लोग हैं, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या गलत नहीं हो रहा। ये भी लिंक्ड है मेरे पिछले पॉइंट से ही, लेकिन एक्सक्लूसिवली भी इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर आप लास्ट ऑफ द स्टोरी को देखें, ठीक है, थ्रू द एंड ऑफ द स्टोरी, जब ये सारा प्रॉब्लम जो है वो इटसेल्फ खुद ही सॉल्व हो जाता है, वो डोंकी जो है, ठीक है, वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है, और मिनिस्टर जो है ही गेट्स किक्ड बाय दैट पर्टिकुलर एनिमल, ठीक है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप देखते हैं कि लोग जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है, जैसे ही ये मसला हल होता है, वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि एक तमाशे को देख सकें कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। वहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खड़े नहीं थे, ठीक है, वहाँ पे वो किसी के साथ एम्पैथी शेयर करने के लिए खड़े नहीं थे, ठीक है, वो किसी के साथ किसी किस्म का कोई अच्छा नोशन रखने के लिए वहाँ पे खड़े नहीं हुए थे। एक्चुअली वो देख रहे थे कि वो मिनिस्टर वहाँ पे करता क्या है, और जैसे ही वो एनिमल वहाँ से चला जाता है, हर आदमी, हर पर्सन, हर स्पेक्टेटर अपने अपने काम की तरफ दोबारा से चला जाता है, और पूरी रोड जो है, ठीक है, इट गेट्स अनब्लॉक्ड, और वो दोबारा से ट्रैफिक वैसे ही वहाँ से फ्लो करना शुरू कर देती है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है, ये हमें ये बताता है कि हम इनडिफरेंट किस्म के लोग हैं, ठीक है। अगर हमारी लाइफ में, हमारे दिन में मोर स्पेसिफिकली, और इसी तरह हमारी लाइफ में कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है जहाँ पे वी नीड रेज आवर वॉइस, वी नीड टू हेल्प अदर्स, ठीक है, वी नीड टू टेक प्रॉपर एक्शंस, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, वी स्टे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फॉर सम टाइम, हम वहाँ पे खड़े रह के वहाँ पे तमाशा देखते हैं, और जैसे ही वो तमाशा ख़त्म हो जाता है, वो तमाशा ओवर हो जाता है, वी बिकम वेरी इनडिफरेंट, बहुत हम इनडिफरेंट तरीके से बिहेव करते हुए हम वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने कामों में दोबारा से लग जाते हैं। दैट वॉज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस स्टोरी। अब बिफोर वी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक लिटरेचर का जो पीस होता है, ठीक है, हम उसको बहुत से एंगल से एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर मे बी मल्टीपल पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर डिस्कस अभी फिलहाल नहीं कर सका बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो एज वेल, that's why I could not discuss all those critical points collectively and all together. Believe me, I can speak for straight 2 to 3 hours on this very short story. ठीक है, मैं इस स्टोरी के ऊपर 3-4 घंटे इवन बोल सकता हूँ फ्रॉम दैट क्रिटिकल परस्पेक्टिव, लेकिन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम वी हैव टू कंक्लूड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जज़ाकल्लाह।